Now, in the second part of this biomolecules topic, we will be now studying about the reactions of glucose. So we will study first of all the structure of glucose once again. If you want, we'll just go back a little bit and we will go back to the structure of glucose we had taken. Okay, so first job all of you will do is draw this particular structure of glucose quickly and give a heading there, D-glucose, and ensure that you are drawing OH groups correctly as shown here on the second carbon right hand side, third carbon left hand side, fourth, fifth again on right hand side. Please do this. We'll make a collection of whatever structures we need today. Start with it quickly. Write a heading, D-glucose. Today we are only focusing on glucose. Fructose we will see in the next lecture. Sir, D means dextro. No. We are coming to that part now. This is not dextro. This is capital D. Dextro is small d. तो capital D हम लोग अभी meaning ले लेंगे in some time today only. Chalo, can we go ahead? Done? Yes, sir. Yes. Let us come to now preparation we had done last time. Let us now come to reactions. Now these reactions were carried out by scientists over a period of time, not just one person, but several people. And every reaction told us about functional groups present in the structure. Remember the time when these reactions were done, glucose structure was unknown to scientists. जो अभी आप लोगों ने ड्रॉ किया है, ये उनको साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर पता ही नहीं था. They were only knowing C6H12O6. So which reaction told us that there is an aldehyde group, there are alcohol groups, there is a primary alcohol, there are secondary alcohol. So uske ye evidences hai. So first point they came to know molecular formula C6H12O6. Then they did a reaction of heating this compound with HI. Now when you heat a compound with HI, the product here obtained was N-hexane. N-hexane. Now N-hexane tells us that glucose originally must be a straight chain compound. Imagine if product was something like isohexane. We could have said, okay, there is a chain of 5 carbon atoms and on the second carbon there is some methyl group. That doesn't happen here. Here you are getting straight chain carbon. Now you can see the way structure is written here. Functional groups are shown in color. Hydrocarbon part is in black. And this is not a detailed structure. We have clubbed together all CHOH groups. Then there is another reaction. Instead of pure HI, they heated it with red phosphorus HI combination. 2 products were obtained. One was hexane, just like upper reaction, and there is another minor product, 2-iodohexane. So in case they ask you a reaction only with HI, write only first one.
If they say HI plus red phosphorus, give the second one. Now in HSC, we have only first reaction. In NEET and JE, we have both the reactions. All right. Don't copy the reaction part right now because there are a lot of reactions. Structures जब आएंगे तो फिर से बोलूंगा आपको मैं. In this part, any doubt? हर एक का जो कंक्लूजन है वो याद रखना, मैंने रेड में लिखा है उसको. Let us go to next reaction. When glucose is treated with hydroxylamine, that forms oxime. Now we have to see where the reaction is occurring. You can see, let me mark also over there. Reaction ka part dekho sirf. Aldehyde group is getting converted into this part. Rest of the molecule is as it is. What reaction has taken place here? C double bond O plus hydroxylamine giving C double bond NOH. The reaction from our aldehydes and ketones chapter. So this particular reaction will only tell you that it is a carbonyl group. अभी ये reaction aldehyde भी दिखाएगा, ketone भी दिखाएगा. So scientists were not clear whether the compound group is aldehyde or ketone. So they called it as only generally carbonyl group. Later on, another reaction, ये भी हम लोगों ने aldehyde ketones में किया है. Reaction with hydrogen cyanide that gives us cyanohydrine. This reaction also will tell you that compound contains a carbonyl group. Reaction देखो कहां पर हुआ है? Aldehyde group becoming cyanohydrine group. C double bond O with HCN. I hope you recollect this from aldehyde ketones chapter. CN. This is the reaction taking place. So पहले वाले जो स्लाइड पे दो रिएक्शंस थे उसके हम लोग को मालूम पड़ा कि ग्लूकोज इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. नंबर 2, ये दोनों रिएक्शन से मालूम पड़ गया कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है. नाउ वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन, ये अभी नेक्स्ट सेट में मालूम पड़ेगा. सी दिस इज हाउ स्ट्रक्चर इज डिस्कवर्ड. एवरी स्ट्रक्चर इज डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में. स्टेजेस होते हैं स्ट्रक्चर्स के. एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस थिंग्स? Chalo, let us go ahead. Now, glucose is oxidized to a carboxylic acid. So, look at the reaction. When they did the oxidation using mild oxidizing agent, bromine water. देखो, mild oxidizing agent है bromine water. Strong कौन से होते हैं? K2Cr2O7, KMnO4. वो सब कुछ लिया नहीं, क्योंकि mild अगर है तो वो रिएक्शन अल्डिहाइड विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड. कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड. अभी ये माइल्ड से अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है ये ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए. एनी डाउट इन दिस? कंपाउंड का ध्यान रखो, नाम ग्लूकोनिक एसिड. अभी आपके स्ट्रक्चर में आप लोग दो स्ट्रक्चर्स ऐड करो. एक जो ग्लूकोज का अभी आपके सामने स्ट्रक्चर चल रहा है शॉर्टकट वाला, CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ये ऐड करो और वहां पे लिखो राइट रिएक्शंस विद दिस स्ट्रक्चर. रिएक्शन लिखने के टाइम बड़ा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इससे लिख सकते हैं. एंड सेकंड स्ट्रक्चर यू ऐड ग्लूकोनिक एसिड, जो अभी आपको सामने दोनों दिख रहे हैं. So what is the first one? ग्लूकोज का शॉर्टकट स्ट्रक्चर, ग्लूकोज शॉर्टकट Yes, sir. स्ट्रक्चर Got it. Got it. और रिएक्शंस. Done? Can we go ahead?
Yes. Now we come to second oxidation. Watch carefully. Glucose on oxidation with nitric acid. अभी ये जो नाइट्रिक एसिड है ये है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखो इससे क्या होता है। अभी ये रिएक्शन का सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह समझ लो। वॉच द लेफ्ट हैंड साइड। सी दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहला ऑक्सीडेशन है अल्डिहाइड ग्रुप becoming COOH and CH2OH group becoming COOH. On the other hand, यही कंपाउंड हम लोग को इस ग्लूकोनिक एसिड से भी मिल सकता है जो रिएक्शन यहां लिखा है। इसमें देखो ऑलरेडी COOH तो था, अभी CH2OH को भी ऑक्सीडाइज करके हम लोगों ने COOH कर दिया। सो नाउ एड अप थर्ड स्ट्रक्चर इन योर नोट्स, सैकरिक एसिड। Saccharic acid, COOH, CHOH 4 times, COOH. It's a dicarboxylic acid. इससे क्या कंफर्म होता है? लास्ट सेंटेंस देखो, मैंने इसको रेड में नहीं किया है। This indicates the presence of primary alcohol group in glucose. Primary alcohol group. नाइट्रिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। So D-glucose and glucose is the same thing. सेम थिंग, यस। ये डी क्या है अभी हम लोग एक 5-6 स्लाइड में देखेंगे। स्ट्रक्चर्स चालू करेंगे, उसपे कैपिटल डी का मतलब आएगा। कैन वी गो अहेड? डन? एवरीवन फिनिश राइटिंग दिस? Yes. चलो नेक्स्ट वन, आई थिंक लास्ट रिएक्शन अंडर दिस। नाउ दिस इज एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी सबसे पहले मैं बताता हूं एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या है, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा यूज नहीं करते रिएक्शन। व्हेनेवर वी हैव एन अल्कोहल ग्रुप, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वी कैन रिएक्ट दिस विथ आइदर एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। कोई भी एसिटाइलेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। So what will happen is this hydrogen atom gets replaced with CH3CO group. So this COCH3 group comes here. कौन सा ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप यहां पे आ गया हाइड्रोजन की जगह, और जो मैंने ब्रैकेट डाले है वो आपका बाय प्रोडक्ट है CH3COOH। अभी ये रिएक्शन जब वो लोग करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, दे गेट पेंटा एसीटेट। ऐसे 5 एसिटाइल ग्रुप आ जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देयर आर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट। सो यू कैन सी द रिएक्शन हैपनिंग हियर। यहां पर देखो आपका ये 4 OH ग्रुप यहां पर है, वो 4 वाले रिप्लेस हो गए, और ये 5th वन रिप्लेसेस हियर। जिनको ये ऊपर वाला रिएक्शन चाहिए लिख के रखना। Copy the structure. नो नॉट नीडेड, रिएक्शंस आप लोग बाद में प्रैक्टिस करना। डन? This is only for knowing how many OH groups are there. no? यस, करेक्ट करेक्ट। सो देखो स्टेप वाइज अभी एक बार एनालाइज करते हैं फटाफट पीछे जाके। पहले पेज पे हम लोग ने ये रिएक्शन देखा, इसका कंक्लूजन क्या था? ग्लूकोज कंटेन स्ट्रेट चेन, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड, these two reactions told us about carbonyl group but not aldehyde or ketone clear. These reaction told us that there is a aldehyde group at the top, there is a primary alcohol group over here. Then this one told us that there are 5 OH groups present. अभी आपके 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है कि इन सब का अरेंजमेंट कैसे है। मतलब अल्डिहाइड टॉप पर है, नीचे सेकेंडरी है, प्राइमरी कहां पर है, ये उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, इसका भी थियरी होता है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में उतना डिटेल में नहीं है। दैट दे डू इट एट हायर लेवल। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि
उसका भी थियरी होता है, मतलब उसके भी प्रोसेस होते हैं, उसके भी रिएक्शंस होते हैं, बट राइट नाउ नॉट फॉर यू आवर कोर्स. सो फर्दर अभी इस पर एक प्रॉब्लम जीटीबी ने इंट्रोड्यूस किया है और ये बरसों से हम लोग जेई नीट में करते आ रहे हैं. द गुड थिंग इज दे हैव केप्ट इट नाउ इन even HSC also. Please read the problem. Alcoholic compound was having a molar mass of 90. It was acetylated. मतलब अल्कोहल ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप में रिप्लेस किया. Molecular mass of this acetyl compound was 174. How many OH groups are present in the compound? अभी एक बेसिक चीज समझ लो अबाउट मॉलिक्यूलर मासेस, अबाउट द रिएक्शन. आपका OH ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन डिलीट करके हम लोग यहां पे रखेंगे एसिटाइल ग्रुप. सो व्हेन यू डिलीट हाइड्रोजन यू आर रिड्यूसिंग द मास बाय 1 यूनिट. हाइड्रोजन कम हो गया मतलब 1 यूनिट से मोलर मास कम हो गया. COCH3 ऐड किया मतलब 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन and 3 hydrogen. Tell me if my addition is okay. Is it fine? सबको समझ में आ गया मैंने क्या कैलकुलेशन किया है? Oh, I'm sorry, I think 43. So इसका मतलब है कि जो मोलर मास कंपाउंड का होगा वो 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा और 43 से राइज होगा. मतलब टोटल चेंज कितना है? कैन एनीवन टेल मी? 42 increase. 42 will be 42 increased. plus ये लॉजिक समझ में आ गया. चलो अभी देखते हैं सॉल्यूशन. ये अभी मैंने जो आपको थियरी बताया एंड दिस इज द डायरेक्ट कैलकुलेशन शोन ओवर देयर. 42 यूनिट का चेंज, राइट? सो अभी देखो अपना मोलर मास 174 था, वो 90 यूनिट हो गया. सो देयर इज अ चेंज ऑफ 84 यूनिट. सो वन ग्रुप makes a change of 42. So 84 must have been done by 2 units. So this compound must be containing 2 alcohol groups. Is everyone following this? समझ में आ गया सम कैसे करना है? Yes, sir. Sir, for one, can you repeat this 42 wala part? Your sum molar mass first decreased by 1 unit and then increased by 43 units. Decreased by 1, increased by 43. So overall change is of 42 units. Correct? Yes. From your pocket, I removed 1 rupee and I added 43 rupees. So now you have 42 rupees with you. That's the way. So in this example, 174 minus original mass 90. So there is a change of 84 unit. So one acetylation makes a change of 42. 84 will be a change by how many alcohol groups? 2. All right, सबके समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. इसी को वो लोग कुछ भी चेंज करेंगे. या बोलो. The difference is always gonna be 42 का 42 only. Yes. multiple. Yes, yes. तो अभी देखो, अभी आपके लिए ये आपको थियरी अगर समझ में आ गया तो एग्जाम के लिए आपके स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, बस हो गया. ये तो पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इतना सब लिख रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करोगे? न्यू मास माइनस ओल्ड मास डिवाइडेड बाय 42. न्यू मास minus old mass upon 42 is equal to number of OH groups. Please make a note of this shortcut. Done? Can we go ahead? Yes. sir. Yes. Few more reactions, लेकिन ज्यादा नया नहीं है. Glucose is oxidized to gluconic acid and metallic silver with Tollens reagent.
So this is glucose structure we have written. रिएक्शन जो पहले किया था वही फिर से है, देखो नया नहीं है रिएक्शन. अल्डिहाइड ग्रुप बिकेम ग्लूकोनिक एसिड. पहले वाला रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ दिया था, ये टोलेंस रिएजेंट के साथ है. इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है, हम लोग ये रिएक्शन फिर से करने का यूज क्या है. ग्लूकोनिक एसिड जब क्रिएट होता है तो वो टेस्ट ट्यूब में या बीकर में आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा. कहां पे, पहले वाले रिएक्शन में. यहां पे आपको तुरंत समझ में आएगा. जब द मोमेंट यू सी सिल्वर प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब, you immediately understand, okay, reaction has taken place. That is a little advantage in this reaction. Another one, ये भी हम लोगों ने aldehyde ketone chapter में किया था, वही फिर से है. Reaction wise it is same. What is important is red precipitate taking place, failing solution test. Both these reactions tell you with 100% that the group is aldehyde. These reactions confirm the presence of aldehyde group. Sir, these all are common in HSC also. Yes. HSC का भी सेम है पार्ट. एक दो खाली थोड़ा कम रहेगा, वो जैसे पहले वाले को 2 आयोडो वाला एक रिएक्शन था, वो नहीं है. बाकी मेजॉरिटी सब ये सिलेबस सेम ही है. ये बायोमोलिक्यूल के सिर्फ लास्ट का 1 या 2 लेक्चर है जो सिर्फ जेई नीट में, एचएससी में नहीं है. मैं बताऊंगा तभी. तब तक चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, इट्स सेम इन एवरीथिंग. अभी ये रिएक्शन जो कर रहा हूं, ये रिएक्शन सिर्फ जेई नीट वालों को है, और इतना सारा है कि मेजॉरिटी टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट. दिस इज अ रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन. अभी लेट मी एक्सप्लेन, पहले ये रिएक्शन क्या है समझ लो. दिस इज अल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप. फिनाइल हाइड्राजीन इज दिस कंपाउंड, ये भी अल्डिहाइड कीटोन का ही पार्ट है. दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन. सो व्हेन रिएक्शन अकर्स, this H2O is lost and we get this phenyl hydrazone. So now let us see first step जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल दिखाया था. Aldehyde group reacting with this part and this phenyl hydrazone is produced. बाकी पूरा मॉलिक्यूल यहां पे रिएक्ट नहीं हो रहा है. Now comes step number 2. If you add excess of phenyl hydrazine, तो ये जो ऊपर का हाइड्राजोन था वो वैसे ही रहेगा, और नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन. रिएक्शन अभी हो रहा है, सेकंड कार्बन फ्रॉम टॉप, एंड इफ यू कीप ऑन एडिंग मोर फिनाइल हाइड्राजीन, यही फिनाइल हाइड्राजीन अभी यहां पर भी रिएक्ट करेगा सेकंड ग्रुप पर. इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लूकोसाजोन. ग्लूकोज का ओसाजोन. ओसाजोन इज दिस कंपाउंड. ग्लूकोज से है इसके लिए ग्लूकोसाजोन. हम लोग ये फ्रुक्टोज में भी करेंगे, उसको कहेंगे फ्रुक्टोसाजोन. So इस can you कंपाउंड, explain this reaction again? I will just write this down and explain. जेई नीट वालों थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दो, ये और? इंपॉर्टेंट है. बोल. So will this continue again? No, I'm just coming to that point only. Pay attention. I'm showing it over here. Aldehyde, alcohol group, rest of the molecule doesn't participate in reaction. वो मैं आगे नहीं लिख रहा हूं. First molecule of phenyl hydrazine. जिन लोगों को चाहिए बाद में ये देख के ये चाहे तो लिख के रखना, आपको सिंपल लगेगा थोड़ा. पहला रिएक्शन हो गया यहां पर. Rest of the molecule still is as it is. Now second molecule reacts. Phenyl hydrazine is a very mild oxidizing agent also. That is why secondary alcohol group also can react. So now the reaction is going to take place at second carbon, और ये बनेगा अभी आपका कीटोन. Then next reaction,
So when this takes place, फिर से वही रिएक्शन होगा, and due to steric hindrance and heaviness of the molecule, रिएक्शन इसके आगे नहीं जाती है, बस यहां तक आएगी. So in total, I have used 1, 2, and 3 mole of phenyl hydrazine. This compound is called phenyl hydrazone, and this is called glucosazone. This is yellowish colored solid crystals. Those who want to take a screenshot of this, you can take it. Everyone followed this? Any doubt now? Perfectly clear? So all these structures, reactions, and everything, Emil Fischer finally collected this and discovered these structures of glucose, gluconic acid, saccharic acid. That was one of the greatest works done by Emil Fischer. He did a lot of other things in carbohydrate chemistry. That's why he got a Nobel Prize. The second Nobel Prize, when Nobel Prizes started, 1901, first was given, second was awarded to Fischer. Whatever lot of basic carbohydrate chemistry we know today is because of this person. I hope glucose structure everyone has drawn already, so nothing to draw right now. Now we come to something very important, और exam के लिए ये part बहुत important है. Keep your pen and paper ready now. अभी हम लोग को थोड़ा structures draw करना पड़ेगा. We come to that explanation of these letters, capital D and capital L. When these carbohydrates were discovered around 1890 onwards, people were not clear about their structures. The most basic structure which was discovered by scientists was glyceraldehyde. Now they found out glyceraldehyde structure using X-ray methods known at that time. And what they found out was, this was the structure of glyceraldehyde molecule. अभी ये जो glyceraldehyde आप देख रहे हो, उन्होंने जो डिस्कवर किया था, this was a dextrorotatory compound. This plane polarized light goes on the right hand side, and coincidentally इस compound का OH group right hand side में था. They called it, जैसे डेक्स्ट्रो लिखते हैं, उन्होंने लिखा कैपिटल डी. इसका और इसका बिल्कुल कोई भी रिलेशन नहीं है. इट इज अनफॉर्चुनेटली अ कोइंसिडेंस. फिर इस ग्लिसरल्डिहाइड का मिरर इमेज कंपाउंड भी बना सकते हैं हम लोग, वेयर OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड इफ यू रिमेंबर, देखो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है. नेचुरली दिस विल बी ए लेवोरोटेटरी कंपाउंड. तो जैसे उन्होंने सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड को स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, जिसमें लास्ट कार्बन था CH2OH, उसके ऊपर वाले कार्बन पर, ये जो कार्बन है यहां पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे डी स्ट्रक्चर. एंड इफ OH is on the left hand side,
we will call it as L structure. Capital D and capital L have no relation with optical activity. No relation at all. D और L से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है. These are merely similar alphabets. लेकिन कैपिटल स्मॉल मीनिंग अलग है. Let us go in little more details. Sir, हाँ बोल. sir, in the first structure of glucose, we are writing glucose D, like D glucose. D glucose, But correct. sir, but OH group was there on both the sides. I am coming to glucose. Just a minute. I started with glycerol. I am coming to that. I am going to do much more than that. Wait a minute. So अभी ये Sir, we have to draw that glyceride. I will come. I'll give you time to draw. Just a minute. तो मैं D का पहले definition आपको दे रहा हूँ. Then I will go back to glyceraldehyde structure. तो अभी D finally किसको कहेंगे समझ लो. Monosaccharide is a D sugar. When in Fischer projection formula, rule देख लो. Hydroxyl group present at the lowest chirality center is on the right hand side. Lowest chirality center. और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो यू कॉल इट एल. क्या मतलब है? एग्जांपल दिखा रहा हूं. ग्लिसरल्डिहाइड में ये आपका सबसे लास्ट, आपको समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं. ये लास्ट वाला आपका ग्रुप है. इसके ऊपर जो कार्बन कायरलिटी सेंटर है उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं. लोएस्ट कायरलिटी का मतलब ये है. इसमें अगर OH राइट में है तो ये स्ट्रक्चर डी. वैसे अभी ग्लूकोज एनालाइज करो. ग्लूकोज में इतने सारे कार्बन है, लेकिन हम लोगों को कौन सा देखना है? सिर्फ ये वाला, ऊपर वाले नहीं, बिल्कुल नहीं. इसमें ये राइट में है, इसलिए हम लोग उसे कहेंगे डी. इज इट क्लियर? डी कभी कहते हैं, समझ में आ गया? ऊपर वाले OH ग्रुप का पोजीशन देखना नहीं है, सिर्फ सेकंड फ्रॉम बॉटम यू नीड टू सी. वो राइट में है तो हो गया अपना काम. वैसे ही हम लोग एल ग्लूकोज भी आ सकता है, क्योंकि एल ग्लिसरल्डिहाइड भी हो सकता है. अभी आप लोग ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो. डी ग्लूकोज आपने ड्रॉ किया है. ऑल ऑफ यू जस्ट ड्रॉ डी ग्लिसरल्डिहाइड स्ट्रक्चर, सबसे पहले वाला. और डी क्या है अभी शायद आपके समझ में आया रहेगा. इसलिए अपने बॉम्बे में एक फेमस ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है इनफैक्ट, ग्लूकॉन डी. मालूम है सबको? Yes, sir. हाँ, so that glucon D, the D stands for actually dextrorotatory as well as this capital D. वो पैक पे देखो, ग्लूकॉन डी का डी कैपिटल है, स्मॉल नहीं है. हम लोग जो ग्लूकोज खाते हैं वो ये कैपिटल डी वाला ग्लूकोज है. एल ग्लूकोज इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन नेचर ओनली, इट्स एन आर्टिफिशियल कंपाउंड. नेचर ओनली प्रिपेयर्स कैपिटल डी ग्लूकोज. ये डी और एल ध्यान में रखना. हम लोग जब चैप्टर अमीनो एसिड्स में आएंगे तभी फिर से ये डी और एल रिक्वायर्ड है वहां पर. So we only do the D1 ना. ड्रॉ ओनली फर्स्ट स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड. बाकी का तुम लोगों ने ग्लूकोज का तो ड्रॉ किया है. और एल ग्लूकोज, एल ग्लिसरल्डिहाइड इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. दीज कंपाउंड्स डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली, डोंट ड्रॉ देम. So are they completely different compounds only? क्या क्या The क्या? D and वॉइस L इज वाला? ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग. व्हाट यू सेड? So the D and L glucose, are they हाँ. completely different like in properties also? प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. मतलब ऑप्टिकल रोटेशन तो अलग है, और बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा फर्क होता है. बाकी अदरवाइज रिएक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज सेम. मेजर डिफरेंस इज बायोलॉजिकल डिफरेंस. अगर आपने एल ग्लूकोज आपने खाया तो आपका बॉडी उसको, इट विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, इट विल जस्ट थ्रो इट अवे फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम. Our body cannot digest, we don't have enzymes to digest L glucose. That's the problem. नेचर ने हम लोग को इतना परफेक्टली प्रोग्राम किया है कि नेचर डी ग्लूकोज बनाएगा, अपने बॉडी में डी ग्लूकोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम दिया हुआ है. इट्स अ परफेक्ट थिंग. एल ग्लूकोज वैसे भी मिलता नहीं है, हम लोग बना सकते हैं उसको सिंथेटिकली, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है.
So now we come to the thing, assign D and L configuration to the given structures. इसके पहले मैं आपको इसका एक रूल बताता हूँ. फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन आपको करेक्ट दिया है या नहीं पहले आपको चेक करना पड़ेगा. तो आपको टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर देखना है एंड टॉप पे कौन सा ग्रुप है और बॉटम के कौन सा ग्रुप है ये फिशर प्रोजेक्शन में डिसाइडेड है. द ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, COOH और अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल और मिथाइल. सो फॉर एग्जांपल अभी ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, इस कंपाउंड का नाम है थ्रियोज. तो सबसे पहले देखो जो सबसे टॉप पे ऊपर ग्रुप है और बॉटम, इज इट इन करेक्ट ऑर्डर. तो देखो अल्डिहाइड शुड बी एट द टॉप, अल्कोहल एट द बॉटम, तो ये करेक्ट ग्रुप है. फिर ये देखो इसमें CHO टॉप पे, CH2OH बॉटम, राइबोज. तो ऑर्डर अगर करेक्ट है तो देन यू कैन चेक. इस सेकंड लास्ट कार्बन देखो तो आपको क्या दिखेगा इसमें, ये OH यहां पर है D एंड यहां पर ये L L. बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन है. अगर उल्टा दिया है, लेट मी डू वन एग्जांपल फॉर यू लाइक दैट. फॉर एग्जांपल दे सपोज गिव यू अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. फिशर प्रोजेक्शन है, यहां CH2OH, यहां CHO, OH एंड H. तो अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, अरे ये OH ग्रुप राइट में है, चलो इसका आंसर D. बट द मिस्टेक इज CH2OH कैनॉट बी एट द टॉप, अल्डिहाइड. सो ये कंपाउंड आपको एक्चुअली It's L. इन्वर्ट करके करना पड़ेगा. तो मैंने आपको उस टाइम पे फिशर प्रोजेक्शन के टाइम रूल बताए थे, R और S कॉन्फ़िगरेशन के टाइम. तो आप लोग इसका आंसर निकालो और रिपोर्ट करो उल्टा आंसर. दैट्स द ट्रिक. सो एक्चुअल कंपाउंड आपको उल्टा करके, पेपर को घुमा के, आपकी मुंडी उल्टी करके ऐसा कुछ करने का नहीं है. आप इसका आंसर निकालो, उसको रिवर्स लिखो, हो गया मैटर. आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, एक पेपर को पूरा घुमाते स्ट्रक्चर समझने के लिए. इट्स नॉट नेसेसरी. आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव रोटेटेड योर मोबाइल फोन और लैपटॉप आल्सो राइट नाउ टू चेक. डोंट डू दैट स्टूपिड थिंग. चलो D and L, बाय द वे दिस वाज अ GTB प्रॉब्लम. ऐसे ही सेम प्रॉब्लम NCERT में भी आते हैं. स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एपीमर्स. अभी आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, जो मैं आपको 2-3 वर्ड्स यहाँ पे रिवाइज करता हूँ. टर्म्स. लॉन्ग बैक वी डिड अ वर्ड कॉल्ड एनेंशियोमर्स. सो एनेंशियोमर्स, ये हम लोग जब भी टर्म्स कर रहे हैं, दे आर ऑल फॉर बेसिकली कायरलिटी सेंटर्स. ये सेक्शन GTB में नया ऐड किया है, तो HSC स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन मोर. पहले सिर्फ JEE नीट में था, अभी HSC में भी आ गया. Chirality center means a carbon can have 4 different groups connected to it. So when you are doing the isomers of it, तो इसमें सबसे पहले वर्ड आता है enantiomers. So what were enantiomers? Mirror images of each other. ये मैं टर्म्स रिवाइज कर रहा हूं थोड़े समझने के लिए. So enantiomers will be mirror images of each other. So अगर ये कंपाउंड है तो ये इसका मिरर इमेज, और ये दोनों हो गए एक दूसरे के enantiomers. So both will be isomers but mirror images of each other. Number 2, सेकंड है इसका दूसरा टर्म है diastereomers. Diastereomers are isomers of each other, but not mirror images. Definitely not mirror images. अभी ये हमेशा कायरलिटी सेंटर के साथ होता है ऐसी बात नहीं है. इसका टेक्स्ट बुक में मोस्टली एग्जांपल रहता है सिस एंड ट्रांस, अल्किन्स वाले. तो cis and trans, as we know, they are isomers of each other, but they are not mirror images. तो उसको हम लोग कहेंगे diastereomers. And now comes a term called एपीमर, जो अभी आपको इस चैप्टर में सिर्फ आएगा. एपीमर. एपीमर का मतलब है कि मोस्टली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ही यूज होता है. सपोज आपके पास
कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग एन इमेजिनरी वन, ऐसे कुछ है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। और फिर इसका आपने एक आइसोमर देखा जो मिरर इमेज नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है। कैन यू लोकेट द डिफरेंस प्लीज? So the OH group. Second carbon from top is having a different configuration. This is called apimer. So apimers are those carbohydrate molecules which will have almost same structure, not mirror images, but differing only at one carbon's configuration. बेसिकली OH ग्रुप लेफ्ट राइट का जो पार्ट होता है वही उसमें अलग होता है। मोस्टली एपीमर्स आर लाइक ओनली डिफरिंग एट वन कार्बन। तो अगर टॉप से दूसरे पे है तो इसको हम लोग कहते हैं C2 एपीमर। अगर सपोज कोई बड़ा चेन है, चौथे कार्बन पे चेंज है, तो हम लोग कहेंगे C4 एपीमर। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। जिनको ये चाहिए पूरा लिख लो फटाफट। ऐसे फॉर्मेट में स्लाइड्स में नहीं है, थोड़ा अलग है वहां पे। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया। हाँ बोलो। So sir, any carbon can be different, ना? एनी कार्बन, यस एनी कार्बन, करेक्ट। So लेकिन sir, suppose- यूजुअली एक ही होता है, एक ही होता है, ज्यादा नहीं। एक साथ 2-3 चेंज है तो उसको एपीमर नहीं कहते। So sir, one first carbon is उल्टा फर्स्ट यूजुअली नहीं होता है, फर्स्ट इज अल्डिहाइड इन दिस। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा after हाँ, तो aldehyde. सेकंड, दैट इज सेकंड कार्बन। So then second का और दूसरा का second have to be हाँ उल्टा only, ना? हाँ, मतलब बाकी का पूरा स्ट्रक्चर से। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, और दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया ना? देखो, पहला सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, खाली C2 में अलग है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C2 एपीमर। अगर पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ फोर्थ कार्बन उल्टा पुल्टा है, मिरर इमेज, तो C4 एपीमर। वो खाली कार्बन नंबर काउंट करके लिखना है अपने को। you all have to compare ना, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाँ, बस बस बस, करेक्ट करेक्ट। ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिख लो, मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ इस पे क्या आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लेवल HSC में बहुत बढ़ा दिया है। पहले इतना सिंपल था लास्ट ईयर, अभी आपका नया HSC वालों को काफी सारा डाला है। ऑलमोस्ट जेई का ही डाल दिया उन्होंने, सब नीट का, जेई का ही सब डाल दिया है। आई एम श्योर बायो पीपल मस्ट नॉट हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन बायोमोलिक्यूल, एम आई राइट? ये नहीं रहेगा ना आपको? आपको सब बायोलॉजी रिलेटेड कुछ रहेगा। ग्लूकोज का था, इतना डिटेल्स है स्ट्रक्चर वाइज। टेल मी व्हेन रेडी। So there was one term in 11th standard, so on isomerism, meso compound. So is it meso compound. meso, yeah. We did that. Meso in this apna. So is that hierarchy similar center. to epimer only? No. Meso compound has plane of symmetry. They are optically inactive. I will write here. Meso compound कैसे होते हैं देखो, COOH। टार्टारिक एसिड का एग्जांपल दे रहा हूं जो हम लोग ने किया है। COH, HH, COOH. The compound has central plane of symmetry. ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम है। Because of that, they are optically inactive. This happens when at least there are 2 chirality centers, at least. We received this 2021 का CET papers, almost 10-11 papers we got. इतना simple papers है chemistry का, इतना simple papers है. You can score really full marks in chemistry. So simple papers. Once again, GTB के बाहर का एक word भी नहीं है. Reactions भी पूछा है ना, वो GTB का use your brain power या उतना ही पूछा है. Chapter के end में जो reactions है question में, वो भी नहीं है. Everything from the printed part. Very simple paper. हाँ बोलो. So have we got the CET portion?
सीईटी पोर्शन मैंने दे दिया आपको पहले ही, वही है पोर्शन, अनाउंस हो गया। मतलब ये ऑल सब्जेक्ट्स का। हाँ हाँ हाँ, मैंने भेजा है ना आपको, लास्ट ईयर का ही सेम है आपको सीईटी का तो वो पोर्शन। नॉर्मल जो गूगल पे आता है वही है ना? गूगल का मत देख भाई, गूगल में कुछ लफड़ा रहता है सब। मैंने भेजा है Can आपको we send पहले ही। again, please? डॉक्यूमेंट दैट आई वर विल सेट। सेंड अगेन, I missed. या आई विल सेंड अगेन। लास्ट ईयर का ही आपको सेम पोर्शन है, जो डिलीटेड पार्ट है वो फिर से सीईटी में नहीं है, एमएच सीईटी में। इस टाइम पे अपना एनसीईआरटी वालों ने कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है। सो अकॉर्डिंगली जेई और नीट में कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, इतना ध्यान में रखना। लास्ट ईयर भी नहीं था, लास्ट ईयर भी नहीं था। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, जो डिलीटेड पोर्शन है दे सेड वी विल आस्क एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जैसे नीट में 45 क्वेश्चंस होते थे, दे हैव आस्क्ड 50। जेई में 25 होते थे, दे हैव आस्क्ड 30। सो वो जो एक्स्ट्रा 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं, so they were from the deleted portion। उन्होंने बहुत स्मार्टली बोला हम लोग उसमें डालेंगे, उल्लू बनाया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। they asked any questions anywhere। so नीट और जेई, एनटीए, ओवरऑल एनटीए पे भरोसा करना ही गलत है। वो लोग जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं। दे फॉलो अक्षय कुमार इन दैट डायलॉग। Sir, in CT they had followed that 10 or 40 का 41 अब 11 हाँ, 12 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस यस, सीईटी पैटर्न एकदम परफेक्ट था, जैसे बोला था वैसे आया था, कुछ भी बाहर का नहीं। एवरीथिंग वाज 10 क्वेश्चंस 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स, 40 क्वेश्चन 12 स्टैंडर्ड। So, और हाँ बोलो। send the paper। अरे हम लोग कंपाइल कर रहे हैं अभी, आपको बुक में दे देंगे। Okay। राइट नाउ डूइंग इट चैप्टर वाइज, निकाल रहे हैं बैठ के, और 2 दिन में हो जाएगा। आई विल गिव यू दैट न्यू थिंग, ऑल so this सब्जेक्ट्स। time both will be online or offline? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऑनलाइन नहीं होगा। So आपका offline ही हो जाएगा right? This ऑफलाइन, time, नॉर्मल yeah, नॉर्मल yeah. पेपर, नॉर्मल एग्जाम। 2 साल बाद तुम लोग को एग्जाम देना है बोर्ड का भी। Sir, 10th तो वो गया, 50 11th गया, 50 तुम लोग। वाला prelim- हमारे लिए नहीं होगा ना, वो 50 प्रीलिम पहले। मेरे ख्याल से प्रीलिम भी Prelim ऑफलाइन भी होगा, offline ही होगा, प्रीलिम sir, भी yes, sir, ऑफलाइन yeah, होगा। yeah. 100% दे विल टेक प्रीलिम ऑफलाइन, क्योंकि So अभी are they ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज reopening the ओपनिंग ना। college? क्या क्या? Are they reopening the college? आर्ट्स और कॉमर्स का चालू हो गया ऑफलाइन, उनको अभी डाउट्स के लिए और कुछ ट्यूटोरियल के लिए बुला रहे हैं। लेकिन साइंस को मुझे लगता है नहीं रखेंगे वो लोग, बिकॉज एवरीवन नोज साइंस पीपल आर सो इंथुजियास्टिक इन अटेंडिंग लेक्चर्स इन कॉलेज। तो मेरे ख्याल से नहीं बुलाएंगे, और लेक्चर्स को ऑनलाइन ही रखेंगे। प्रैक्टिकल वैसे भी आपका चालू हो गया। अरे जय हिंद वाले प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं चालू? है कोई जय हिंद वाला इधर? No, sir, no. We've not No started. sir। कभी After करेंगे? Diwali. Sir, Diwali, they okay, are saying after the Diwali break they will start। अच्छा ओके। हर टाइम जैसा लेट है वो लोग। So, but then Yes, if sir। people are not vaccinated, how can they take the risk अभी तो of तुम college? लोग का ट्रेन भी चालू हो रहा है ना, तुम लोग के लिए अलाउ Yes, sir, under 18. अंडर 18 धमाल होने वाला है। अभी रियल मजा आएगा, अभी कुछ नहीं। अभी रियल मजा है कि सच में केसेस कितने हैं, क्या है, अभी पता चलेगा इतने दिन बाद। Yes, sir. They'll नाउ all- इफ एक्सप्लोजन हैपेंस ना, गया काम से फिर बॉम्बे। नाउ दे हैव ओपन एवरीथिंग एट Everything, वन sir. टाइम, Theater is also opening Friday, sir. So yeah, थिएटर्स yeah. ओपन 50%, ये वो सब एक साथ They चालू were करेंगे, mad धमाल at होने it. वाला है। Like Lonavala and all those places, they've opened all the parks and everything. all Swimming that. pools Yeah, yeah, also, yeah. everything. And boards तक वापस कोविड आ जाएगा बहुत। ये देख ऋषि का, देख नस्टर लगा रहा है सही बैठ होना के। चाहिए। अरे यार मत करो, सब मत बोल यार। ऋषि के साथ आधे लोग मारेंगे तेरे को, प्रियश पहला आके मारेगा तेरे को। उसको तो इतना मजा आ रहा है, कॉलेज चालू हो रहा है तो खुश हो रहा है बहुत वो। नो सर, कितना या प्रैक्टिकल फिर क्या? प्रैक्टिकल 5-5 घंटा जाना पड़ता है। 5 घंटा कैसे? Yes, sir. Chemistry 4 में घंटे don't थे, sir। get 3.5 hours 4 hours, sir. Physics का केमिस्ट्री जितना में? लंबा था। So they हाँ, don't physics get a is sit always at all. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 10:30 चालू होता है। तुम लोग पता नहीं कितने बजे आते हो। मेरा बैच आज तक 150 के आगे 130. रुका नहीं, 130 Yes, sir. 150 के We आगे रुकने का ही started नहीं। the last practical at 2 o'clock, that functional group वाला। Now, can you watch in this one? Mannose, glucose and galactose, 3 compounds are shown. Compare glucose structure very carefully with mannose. And you can see C1 is same, C3 is same, C4 is same, C5 is same. It differs at C2. So mannose is a epimer of glucose at C2, while galactose is differing only at C4.
These are called epimers. कंसेप्ट इज क्लियर? अभी इसको हम लोग बहुत एक्सपांड करेंगे, तो ध्यान से पे अटेंशन, डोंट गेट शॉक्ड. अभी हम लोग डी अल्डोज का पूरा सीरीज देखेंगे आज, एंड दैट सीरीज इज लाइक दिस. इस पे 2 बार क्वेश्चंस जेई में और 1 बार क्वेश्चन नीट में आया है. आप वो लोग रैंडमली कंपाउंड देते हैं, डी अराबिनोज, डी मैनोज, डी लैक्सोज, डी आयोडोज, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. तो जब तक आपको ये सभी स्ट्रक्चर बाय हार्ट नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते. अभी ये स्ट्रक्चर लिखने का क्या स्ट्रेटेजी है, प्लीज 100% पे अटेंशन. मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझ लो एवरीवन. आपको सबसे बेसिक ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बाय हार्ट होना चाहिए. इसमें टॉप पे अल्डिहाइड है, फिर OH राइट में है, H लेफ्ट में और CH2OH नीचे. दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड. हम लोग सिर्फ डी सीरीज ही कर रहे हैं, तो सभी का OH राइट पे ही आएगा. एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? परफेक्टली क्लियर. नाउ वी विल ऐड 1 कार्बन एटम अबाउ दिस सेकंड पोजीशन. तो मैं यहां पे ये कार्बन को ऐड कर रहा हूं एपीमर फॉर्म में. एपीमर फॉर्म में, कैन यू सी? ये 2 हो गए C2 एपीमर ऑफ आगे के ग्लिसरल्डिहाइड के. बात समझ में आ गई कैसे किया हम लोगों ने इसको? नीचे का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, ग्लिसरल्डिहाइड का ही है. दिस इज एरिथ्रियोज एंड थ्रियोज. कैन वी गो अहेड? इज दिस ऑल राइट? सर इस OH और H का एक डिफरेंस है ना? बस वो देख, एक दूसरे का मिरर इमेज है. समझ में आया? OH यहाँ पे राइट में, यहाँ लेफ्ट में. आई बात समझ में? कैन वी गो अहेड? यस. अभी एरिथ्रोस को पकड़ो और आगे चलो. एरिथ्रोस का स्ट्रक्चर कॉपी करके सेकंड पोजीशन में फिर से एपीमर इंट्रोड्यूस करो. बाकी का ऊपर का स्ट्रक्चर एरिथ्रोस का ही कॉपी मारा है. कंपाउंड आ गए राइबोज एंड अराबिनोज. ट्रिक समझ में आ रही है सबको? क्या कर रहा हूं, CHO के नीचे मैं एक एक कार्बन को इंक्रीज कर रहा हूं ऊपर से सेकंड, और मैं राइट और लेफ्ट में लिख रहा हूं. वैसे ही अभी थ्रियोस का स्ट्रक्चर ले लो और उसमें एपीमर इंट्रोड्यूस करो, जाइलोज एंड लैक्सोज. नाउ पिकअप राइबोज, और राइबोज के स्ट्रक्चर में C2 एपीमर इंट्रोड्यूस करो, एलोज अल्ट्रोज. टेक अराबिनोज, मेक C2 epimers. Glucose mannose, take xylose, C2 epimers. Gulose iodose, take lactose, C2 epimers. Galactose and talose. Most difficult part personally I feel is remembering names. Otherwise drawing structure should not be a challenge. अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं स्ट्रक्चर, क्या ट्रिक है? समझ में आ गई है सबको? छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं. पूरा सीरीज नहीं, ऑफ कोर्स दैट विल टेक अननेसेसरी टाइम. ये है मेरा ओरिजिनल ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर. डी ग्लिसरल्डिहाइड. इससे हम लोगों ने 2 C2 एपीमर को फॉर्म किया. तो क्या किया हम लोगों ने? CHO, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड था मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, और अभी क्या इंट्रोड्यूस किया मैंने यहां पे मैंने ग्रुप इंट्रोड्यूस किया. इसमें OHH और उसका एपीमर. फिर इसके हम लोगों ने एपीमर्स बनाए फिर से. तो इसके एपीमर्स कैसे दिखेंगे? CHO, CH2OH, OHH,
फिर ये जो आप देख रहे हो OHH, ये एक, और ऐसा ही दूसरा CHO, CH2OH, OHH और ये HOH। अभी तक मैंने सेम स्ट्रक्चर इसी को कॉपी किया है। अभी हम लोग यहां पे एपीमर वाले ग्रुप ऐड करेंगे, OHH, OHH, हर एक के फिर आगे 2 करते जाओ। सो इसके हम लोगों ने ये 2 बनाए। एवरीवन अंडरस्टूड द वे ऑफ ड्राइंग इट? सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर आगे इंक्रीज करते जाना है, नथिंग मोर वी नीड टू डू। ऐसे आपको सभी डी सीरीज के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। As I said, only difficult thing is to remember the names, seriously. जेई वालों को कोई चॉइस नहीं है, सभी के सभी जितने कंपाउंड दिख रहे हैं सब नाम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ बाय हार्ट करने हैं। 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे, वार्निंग दे रहा हूं, अभी से करके रखो। HSC में इसमें से थोड़े स्ट्रक्चर्स है, खाली GTB मेरे को देखना पड़ेगा। उन्होंने 4-5 स्ट्रक्चर रखे हैं, पूरा सीरीज नहीं रखा है। इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, ग्लूकोज तो ऑफ कोर्स है, गैलेक्टोज है, शायद थ्रियोज है, आप चेक कर लो एक बार GTB, राइबोज है। उन्होंने गिने चुने स्ट्रक्चर रखे हैं, नॉट एवरीथिंग, but they have not explained it in this way as we are doing it. They are just in a table randomly giving structures. तो उसमें कुछ रिलेशन ही समझ में नहीं आता है। This is the way you have to remember it. Yes.